Namaskar. I am Neelam Joshi, wife of Sumit Joshi. In 2010, I had word with Vikram sir. First time I met with the Vikram sir because my husband was having the wall problem and the leakage was there in the heart. When we met with him, then we got the satisfaction because before that we never met. We met to different hospitals and then different doctors we visited, but we were not getting any kind of satisfaction that we get from the Vikram sir post meeting with him. He is a very genuine person. By bottom of heart I am saying that जब हम उनसे मिले तो एक लगा कि we have never seen the God, but it is said that doctors are the second picture of God, and it proves same. विक्रम सर ने 2010 में हस्बैंड का ऑपरेट किया. AV valve replacement was there, and the way he treated us and that everything that was just like a father. Me and my husband both and my entire family thankful to him that he treated, and then because of him only my husband's life is there. Then now recently on 25th of April 2024, he was having some problem in heart, and then we had for the checkup and all those things. Then in X-ray report it came that there is a swelling in his heart. And yes, I do agree with this, that negligence of the medicines, it happened with my husband again. And then at the night time when I had a call with him, had word with him, then he said to me that yes, I do remember you, Neela. You just share your reports with me. I shared the X-ray and then echo reports, and then he made a call back to me, and then he said that on the immediate basis we need to admit him in the hospital. And we come to know that he's there in the Fortis hospital. So I just want to operate my husband with him only because he saved my husband's life. And then second time when it is there again, then he took the initiative, and then at the night time he came along with his entire team to get the suggestions over here at night. I think 9 o'clock on 25th of April at 9 o'clock at night we came in the hospital, Fortis hospital, and then he came here. उन्होंने मुझे इतना moral support दिया, and then he said that मैं बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, and he proved his words. On 26th of April surgery was done, and again he saved my life. Thank you, Vikram sir. Thanks a lot. मैं डॉक्टर विक्रम गोयल हूँ और वर्तमान में मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी, एडल्ट, पीडियाट्रिक एंड मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के रूप में कार्यरत हूँ. ये जो जेंटलमैन है सुमित, ये मेरे पास लाया गया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में और बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में, जहाँ वो अपनी एक एक सांस के लिए और बेसिकली जीवन की लड़ाई लड़ रहा था. सुमित का एक इतिहास है. सुमित का इतिहास ये है कि 2010 में सुमित की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसके चलते उसको एक आयोटिक वॉल रिप्लेसमेंट किया गया था. वो भी मैंने ही किया था. उस समय ये आयोटिक वॉल रिप्लेसमेंट एक मैकेनिकल वॉल से किया गया था और मिनिमली इन्वेजिव किया था मैंने, ऑफ कोर्स. और सुमित के साथ परिस्थिति ये थी कि ये जो वैसे तो पढ़े लिखे हैं और जहीन हैं, समझदार हैं, लेकिन किसी कारण से, परिस्थितियों की वजह से इन्होंने पिछले कम से कम 12 साल से कभी कोई फॉलोअप नहीं लिया, कोई दवाई नहीं ली, और न मेरे को दिखाया न किसी अन्य डॉक्टर को दिखाया. और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, और इस पे प्रभु की असीम कृपा थी कि इतने साल फिर भी अच्छी जीवन जी पाया. लेकिन हर चीज का जैसे एक जेनिथ होता है, एक पीक होता है. 2024 में अभी कुछ दिनों पहले सुमित का ये वॉल स्टक हो गया, यानी ये वॉल रुक गया, और सुमित की स्थिति गंभीर ही नहीं, अति गंभीर हो गई. और वो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ आने से पहले अपनी एक एक सांस के लिए जूझ रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे कि सुमित की सांसें उखड़ रही हैं और उसका जीना अब असंभव है. नेचुरली परिवार पैनिक हो गए, और आसपास के लोग, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ और उसके पिता और उसके सभी बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए. उन्हें नहीं लग रहा था कि ये स्थिति अचानक कैसे हो गई.
उन्होंने फ्रेंटिकली मुझे ढूंढा क्योंकि वो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं थे इतने सालों में, और अल्टीमेटली दे गॉट मी। और फिर मैंने इनको देखा सुमित को, तो मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा इसको समझने में कि सुमित के पास कुछ नंबर्ड डेज हैं, नंबर्ड आवर्स है। तो रात में ही मिडिल ऑफ द नाइट में हमने इसको एडमिट किया और प्लान किया कि इसको रीडू ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब रीडू ऑपरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, और स्पेशली जब आप हार्ट फेलियर में होते हो और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, तो रीडू वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। जब ऐसी सिचुएशन में रीडू करना पड़ता है तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो एक बड़ा भारी चैलेंज था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर अपनी टीम से डिस्कस करके, जिसमें डॉक्टर मुनीश, डॉक्टर राम शरण और बाकी सब लोग हैं जो एक्सपीरियंस है, 20-20 साल से काम कर रहे हैं मेरे साथ भी, उनसे बात करके हम इस निर्णय पे पहुंचे कि ये ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है कि सुमित को कम से कम एक चांस तो दिया जाए। सुमित को एक चांस तो बनता था, क्योंकि अदरवाइज आल्सो वी वर लूजिंग हिम। तो लकीली फैमिली को समझ में आ गया। फैमिली ने तुरंत ही कहा कि सर, पिछली बार भी आपने किया है, यू गो अहेड एंड डू व्हाटएवर इट टेक्स टू ट्राई एंड सेव सुमित। तो हमने उसको तुरंत अगले दिन ही उसकी सर्जरी प्लान की और रीडू ऑपरेशन किया। रीडू ऑपरेशन में क्या होता है, जो सर्जरी पहले की जा चुकी होती है, हमें उसी जगह से वापस जाना पड़ता है। और आप समझिए कि उसको खोलने से ही, मतलब हार्ट को एक्सपोज करना ही, हड्डी को काट के वापस, अपने आप में एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि वो इतना चिपका हुआ होता है कि हम जब उसको डिसेक्ट करते हैं तभी ब्लीडिंग हो सकती है और हम हार्ट फट सकता है और हम जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और उसके बाद जब हम हार्ट तक पहुंच जाते हैं तो वहां से वो पुराना वॉल्व उस हार्ट में से एक्सप्लांट करना, निकालना और उसी जगह पे दूसरा वॉल्व डालना, अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब है। डिफिकल्ट भी है और रिस्की भी है। लकीली वी कुड अचीव दिस विथ लॉट ऑफ आराम से, सक्सेसफुली। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसको अचीवमेंट करने में और इसको सक्सेसफुली वापस एक नया वॉल रीइम्प्लांट करने में और फिर सफलतापूर्वक सुमित के आज सिर्फ चौथे दिन घर जाने की अवस्था में आने का मुख्य जो कारण है, जब मैं रिट्रोस्पेक्टिव में सोचता हूँ तो मेरे ख्याल से 2-3 कारण हैं। एक तो फोर्टिस अस्पताल में जयपुर में उपलब्ध एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड ऑल दैट। दूसरी, जीनियस मैन पावर, एक्सपीरियंस मैन पावर विच आई हैव। इन दो के अलावा तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे लगती है, इस टीम का अनुभव इस तरीके के केसेस करने का, रीडू केसेस करने का। अब मैं पिछले 30 साल से ऑपरेशन कर रहा हूँ और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हर महीने कम से कम 2 या 3 रीडू ऑपरेशन कर ही रहे हैं। तो ऑल इन ऑल सुमित इज डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइन। वी आर वेरी हैप्पी एंड मोर देन हैप्पी, आवर टीम इज वेरी मच सेटिस्फाइड that at least Sumit has been given another lease of life। और मैं परम पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमें इस इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को सक्सेसफुली निभाने में उसने हमारे को हुनर अता किया। मैं मेरी टीम की तरफ से सुमित को उसके उज्जवल भविष्य और बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और सुमित से ये गुजारिश करूँगा, उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार अपना रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर से नहीं छोड़े, चाहे मैं हूं चाहे कोई अन्य हो। गुड लक सुमित, थैंक यू वेरी मच।